ناظرین، اس وقت ہم اسلام آباد کے پریس کلب میں موجود ہیں. آپ میرے پیچھے دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج بھی جتنے بھی ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، اور خاص طور پہ موجودہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے انتہائی ناقص قسم کے ٹیکس جو ہیں وہ اس سیکٹر پہ عائد کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کاروبار جو ہے وہ زوال پذیر ہے. انتہائی مشکلات کا یہ لوگ شکار ہیں. اسی سلسلے میں آج انہوں نے اسلام آباد پریس کلب میں احتجاج کرنے کا وہ جو ہے ارادہ کیا ہے. آئیے مختلف لوگوں سے آپ کو ملواتے ہیں، یہاں کے جو ریئلٹر فیڈریشن کے عہدے دوران ہیں ان سے بھی آپ کی بات کرواتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا ضرورت پڑی کہ آج آپ کو ایسا احتجاج کیا؟ دیکھیں بیسیکلی جس طرح 2016 میں اسی گورنمنٹ یہی وزیر خزانہ تھے اور انہوں نے ہی اس ٹائم ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ ٹیکسوں کی بھرمار کی، اسی طرح کے ٹیکس ناجا اور بیجا قسم کے ٹیکس لگائے گئے جو ہماری اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بالکل تباہی کے دانے پہ لے گئے. تو اس لیے ہم آج ہمارے تمام راولپنڈی اسلام آباد کی تمام ایسوسیشن جس میں اسلام آباد کے تمام سیکٹرز اور ڈی ایچ اے بحریہ، ڈی ایچ اے ویلی اور اس سے منسلک تمام ایسوسیشن یہاں پہ اکٹھی ہوئی ہیں اور تمام ریالٹرز اپنے حق کے لیے آج نکلے. سر ابھی تو یہ بھی چیک گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اسحاق ڈار کو پرائم منسٹر لایا جائے، تو کیا کہیں گے آپ؟ چلے ہم تو دیکھیں اگر اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ معیشت میں بہتر کردار ادا کر سکے تو آنا چاہیے، مگر ان کو یہ چاہیے بیسیکلی کہ جو سیکٹر ملک میں معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی مدد کردار ادا کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کریں، نہ کہ اس کو بند کرنے کی سازش ہے. تھینک یو سر. تھینک یو. وعلیکم السلام جناب. آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ضرورت پیش آئی آپ کو آج یہ احتجاج کرنے کی؟ سر جی بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے، کنسٹرکشن جو بھی ہے وہ سارا تباہ و بربادی کی طرف یہ گورنمنٹ لے گئی ہے. ٹیکسوں کی بھرمار ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کام کرنا مشکل ہو گیا ہے. یہ واحد شعبہ تھا ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن جس میں ملک کے ریونیو میں اضافہ ہوتا تھا، لیکن اس ملک کے یہ جو حکمران ہیں یہ انتہائی نہل ہیں کہ انہیں اتنا احساس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اتنے اہم سیکٹر کو تباہ و برباد کر دیا. سر مجھے یہ بتائیں، حکومت کو تو جانے کو چند دن رہ گئے ہیں، تو یہ حکومت آپ کی پرابلمز کو کیسے سالو؟ سر جی آنے والے وقت کا الیکشن ہے، ان لوگوں نے ہم سے ووٹ لینا ہے، تو اگر یہ ہم سے زیادتی کریں گے تو زیادتی کر کے یہ ہم ان کو ووٹ دیں گے، ٹھیک ہے نا. ابھی ان کے پاس ٹائم ہے، یہ چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا کہ ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کو آپ تباہ و برباد کر دیں، ٹھیک ہے نا. ٹیکسیز ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، جتنا ریونیو یہ چاہتے ہیں اس سے ڈبل ریونیو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان نے ان کو تجاویز دی ہیں، وزیر خزانہ کو دی ہیں، تمام قابلوں کو دے چکے ہیں، لیکن یہ ہمارے سیکٹر پر اس کو بالکل سیکٹر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ ان کو عقل دے. سر ابھی تو یہ بھی چیک گوئیاں ہو رہی ہیں اسحاق ڈار جنہوں نے معیشت کا بیڑا گار کیا ہے ان کو پرائم منسٹر لایا جائے، آرڈنری کیا کہیں؟ میں نے بھائی جان یہی کہا نا کہ انہوں نے آنا تو الیکشن میں ہے نا، تو اگر یہ اس سیکٹر کو ٹھیک نہیں کریں گے تو کم از کم ہم انہیں ووٹ نہیں دیں گے، ہم انہیں ووٹ نہیں دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی وعلیکم السلام. کیوں ضرورت پیش آئی آج آپ کو یہ احتجاج کرنے کی؟ سر ضرورت اس لیے کہ حکومت نے بغیر کسی ہمارے مشاورت کے اسٹیک ہولڈرز کی اتنے ظالمانہ قسم کے ٹیکس لگا دیے ہیں. ایک واحد شعبہ جو ریئل اسٹیٹ کا پاکستان میں چل رہا ہے اور کنسٹرکشن جو چل رہا تھا اس کا یہ بٹھا بٹھانے والی بات کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کی شرائط اپنی جگہ، لیکن ان کے جتنے ٹیکسز تھے چاہیے یہ تھا ہم اسے مشاورت کرتے. جتنا ان کا ٹارگٹ ہے تقریباً 60 ارب کا ہے، ہم اس سے شاید اس کو زیادہ ایسا گائیڈ کرتے کہ زیادہ ٹیکسز مل جاتے ہیں. ان کا ٹارگٹ ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا، ہم مشاورت ہمارے ساتھ کریں گے انشاءاللہ ہم بہتر گائیڈ کر سکیں. اور انہیں کیا ایک ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہی نظر آیا. پاکستان میں کتنے کاروبار ہیں، کتنے پروفیشن ہیں، تو یہ ٹیکس آپ ڈیوائڈ کریں بجائے صرف ریئل اسٹیٹ کو ٹارگٹ کرنے کی. اس لیے ہم بھرپور احتجاج کر رہے ہیں پورے پاکستان کی. جو ہماری یہ حکومت تو چند دنوں کی مہمان ہے کہ آپ کے پرابلم سالو؟ دیکھیں ہمارا کام ہے اپنا جو احتجاج ریکارڈ کروانا، ہمارا جو مسئلہ اس کو ہم ہائی لائٹ کریں میڈیا کے ذریعے، آپ دوستوں کے ذریعے. یہ گورنمنٹ ہے یا انٹرم والی گورنمنٹ ہے یا فیوچر میں نئی گورنمنٹ آتی ہے، ہمیں جو تکلیف ہم وہ تو بیان کریں. اب اس پہ یہ عمل کریں نہ کریں اس کا کیا سولوشن نکالتے ہیں، لیکن جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ ماں کے آگے روتا تو ہے نا کہ وہ ماں دودھ پلائے نہ پلائے، بچہ روتا تو ہے. تو اسٹیٹ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، تو اسٹیٹ کو چاہیے یہ لاکھوں ہزاروں جو لوگ یہاں پہ ہیں ان کی بات سنیں. ہمارے پاس لاجک ہے کہ یہ انہوں نے یہ غلط کیا سارا سسٹم. ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں انشاءاللہ ہم زیادہ ریونیو دے سکتے ہیں. سر آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آپ کی پرابلم کو سالو کر دے؟ اس کے علاوہ سر یہ بتائیں اسحاق ڈار کو یہ بھی چیک گوئیاں ہو رہی ہیں، معیشت کو آج اس نوبت پر اسحاق ڈار نے بچایا،
दोबारा अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑर्डिनरी आ गया तो फिर क्या? देखिए सागदार साहब हैं, कोई भी है, मैं अर्ज करता हूँ उन्हें एक चीज़ का अदराक होना चाहिए कि रियल एस्टेट की वजह से कितना एक सर्कल चलता है, कितनी इंडस्ट्री चलती है, कितना टैक्स लोगों को आता है। वो कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी हमारा वज़ीर ख़ज़ाना आए, उनको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमारे साथ अगर बैठेंगे हम उनको ज़्यादा रेवेन्यू दे सकते हैं। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं क्यों जरूरत पेश आई आपको आज ये एहतजाज करने की? लेट आए दुरुस्त आए। जब तक यानी गर्दन की तक डूब नहीं गए ना तब तक नहीं निकले, लेकिन बहुत खुशी हुई है कि किसी नेक मकसद के लिए भी आवाम निकली है और हमारे डीलर हजरात और बिल्डर हजरात को बिल्कुल यानी कि जाम करके रख दिया है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप निकले हैं, लेकिन इंशाल्लाह उस टाइम तक हम वापस घरों तक नहीं जाएंगे जब तक हम अपने मुतालबात मंजूर ना करवा लें। और जब तक सिर्फ हमारे मुतालबात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के मुतालबात हैं। पूरा पाकिस्तान इस टाइम रियल एस्टेट, आपको पता है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू रियल एस्टेट दे रहा है। दूसरे नंबर है कंस्ट्रक्शन जो है ना, 50 से ज्यादा इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन से मुस्लिक हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन को इन्होंने रोक दिया है। आगे हमारी आने वाली नस्लें कहाँ रहेंगी? कंस्ट्रक्शन इस टाइम रुकी हुई है, आगे झोंपड़ों में रहना है। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जितनी जल्दी हो सकता है टैक्स कम से कम करें। ये बताएं हुकूमत तो चंद दिनों की मेहमान है, फिर क्या करेंगे आप? लेकिन आने वाली हुकूमत को तो हम ये अपना पैगाम देंगे ना, ठीक है? पहले 1%, फिर 2%, फिर 3%, फिर 10%, यानी कि बिल्कुल ही मुश्किल में पूरे सर ये बताएं कि साहबदार साहब जिन्होंने आज इकॉनमी को इस हालात पे या आप लोगों के साथ ये सारा कुछ जो हो रहा है उनमें बड़ा कलीदी किरदार है, उनको चेकगोइयां हो रही हैं ऑर्डिनरी प्राइम मिनिस्टर लाने की, तो क्या आप इसके हक में हैं? ये एक नई गलती कर रहे हैं। इसहाक डार इस मुल्क के नाअहल तरीन वजीर खजाना है। जितने इन्होंने टैक्सेस लाए, गेन टैक्स तो शुरू ही इन्होंने किया है। इनका नाम अगर मिस्टर गेन टैक्स रखा जाए तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्सेस इन्होंने हर रोज कोई नया टैक्स ऐसा लेके आते हैं जिसका हमें नाम ही नहीं आता। जब उसमें हम जकड़ चुके होते हैं तब हमें पता चलता है कि ये टैक्स भी आ गया है। तो इसहाक डार को प्लीज इनको नहीं किसी और को लाया जाए। नाज़रीन, जैसे कि आपने मेरे दोस्तों की बात सुनी, इनका यही कहना है कि इस वक्त जो हमारे वजीर खजाना है, आज 14-15 माह हो गए अगर मुल्क को इस स्टेज पे लेके आए हैं तो उसमें इसहाक डार का बड़ा कलीदी किरदार है। और ये भी चेकगोइयां हो रही हैं, उनको अगर ऑर्डिनरी प्राइम मिनिस्टर लाया गया तो ये मुल्क तो बिल्कुल तबाही की तरफ गामजान होगा। आइए मैं बाकी लोगों से भी आपको मिलवाता हूँ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आप इसहाक डार के बारे में? क्या मसलन बात यह है जी कि इसहाक डार के बारे में आपने देखा है कि वो आए पैराशूट के जरिए आके मुसल्लत हुए, उसके बाद इस मुल्क का क्या हाल कर दिया। आज अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये इसहाक डार साहब की मेहरबानी है। इन हुक्मरानों ने इस मुल्क की जितनी इंडस्ट्री हैं सबको डुबो दिया। एक सेक्टर था रियल एस्टेट जो आपके मुल्क की माशियत की रीढ़ की हड्डी की तरह है, उसको भी ये तबाह करने पे तुले हुए हैं। इस केस या तो रोजगार लो, इनको दे गवर्नमेंट इन लोगों को रोजगार दे, जिसने रियल एस्टेट ने इन लोगों को रोजगार दिया हुआ है। इन लोगों के कितने लोगों के घरों के चूल्हे चल रहे हैं। आप एक सेक्टर की मिसाल ले लें, हजारों लोग वहां पे उसके अंदर वो काम कर रहे हैं, हजारों लोगों के घर के चूल्हे चल रहे हैं। आज गवर्नमेंट लोगों को फायदा देने की बजाय, लोगों को बेहतर सहूलत देने की बजाय उनके ऊपर टैक्सेस डाल के उनको मजीद दीवार के साथ लगाया जा रहा है। सर जी ये देख ले, ये सरासर जुल्म है, सरासर ज्यादती है। आज सब के सब भाई यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। ये गवर्नमेंट होश के ठिकाने ले, ऐसा नहीं वो कर सकते कि जो उनका मन चाहे वो कर दे। ये एक इंडस्ट्री या रियल एस्टेट, इसको प्रॉपर एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है। इस एक के साथ 55 इंडस्ट्रीज और जुड़ी हुई हैं, 55 और इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ डीलर हजरात जो है अभी वो है, अभी यहाँ पर कोई लेबर नहीं है, अभी यहाँ पर कोई उस तरह का और नहीं है। आज हम इनको टाइम देंगे, हमारे मुतालबात माने। अगर इन्होंने हमारे मुतालबात ना माने तो फिर हमसे किसी किस्म का जो है वो गिलाफ ना करिएगा। ये हमारी आज लास्ट वार्निंग है कि हमारे साथ ये जुल्म बंद करे। हम फाइलर्स हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, फिर हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? ये हमारे साथ जुल्म क्यों हो रहा है? क्यों इस इंडस्ट्री का माशी कत्ल किया जा रहा है? इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे कौन सी लॉबी है? ये हुकूमत होश के ठिकाने ले, ये जुल्म, ये गरीबों के साथ जुल्म बंद करे। बहुत सारी बेरोजगारी, यहाँ पर मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं क्यों आज जरूरत पेश आई आपको इस एहतजाज? ये जो हुकूमत वक्त ने रियल एस्टेट सेक्टर पर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर जालमाना टैक्सेस लगा दिए हैं, जिससे लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार बंद हो गया है।
लोग जो अपनी छत बनाना चाहते थे उनके वो घर रुक गए हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में थे उनकी जितनी भी बिल्डिंग्स है वो रुक गई हैं। इस जालमाना टैक्सेस के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक इस सेक्टर को रिलीफ ना मिले, क्योंकि ये वो सेक्टर है जिससे 40 से 50 एलाइड इंडस्ट्री चलती है, जिससे रोजगार मिलता है, जिससे जो घरों की कमी है वो पूरी होती है। इसी के ऊपर शब खून मारा गया है। तो हम इन टैक्सेस जो हम पे लगाए गए हैं उनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि इन टैक्सेस को फिल फॉर वापस लिया जाए। सर हुकूमत तो चंद दिनों की मेहमान है, आप क्या समझते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? मैं समझता हूँ कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। जो नई हुकूमत आए, जो इंटरम गवर्नमेंट है, वो हमारे मुतालबात को सुने और इनको हल करे। सर इसहाक डार साहब के मतलब ये भी चाहे गोइयां हैं कि ऑर्डिनरी प्राइम मिनिस्टर लाया जाए, और आज इस नौबत तक पहुंचाने वाले भी इसहाक डार साहब हैं, तो क्या कहेंगे? बात यह है कि जब भी डार साहब आते हैं तो डार टैक्सेस लगाते हैं। मैं खुल के आपको बता रहा हूँ, जब डार साहब इस मुल्क में आते हैं दुबई की प्रॉपर्टी चढ़ती है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी डाउन होती है, तो ये सारी डार साहब की मेहरबानी है। ये जो आज लोग सड़कों पे है, ये 3 महीने बाद इन्होंने हमसे वोट लेने के लिए आना है, तो ये अपने वोट बैंक को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। ऐसी पॉलिसियां लेके आए जिससे इनका वोट बैंक बढ़े, ऐसी पॉलिसियां लेके आए जिससे रोजगार बढ़े। तो हम डार साहब के जितने भी इकदाम हैं उनकी मजम्मत करते हैं। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन हमारे साथ है, इनका यही कहना है कि इसहाक डार साहब जो 14-15 महीने से इसलिए आए थे कि इस मुल्क की मैशियत को बेहतर करें, आज उन्होंने इस मुल्क की मैशियत का बेड़ा गर्क कर दिया। और ये लोग अगर यहाँ पे जमा हैं तो इसमें इसहाक डार साहब का बड़ा हाथ है। और ये भी कहा जा रहा है, चाहे गोइयां हो रही हैं, कि इसहाक डार को ऑर्डिनरी प्राइम मिनिस्टर लाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये मुल्क और बदमज़गी और मेरे ख्याल में ऐसी नौबत आ जाएगी कि लोग वाकई सड़कों पे आ जाए। ना तो पॉलिसी बेहतर होगी बल्कि लोग एहतजाज के लिए ये रोड ही ब्लॉक कर देंगे, और पाकिस्तान के साथ वो कुछ होगा कि जो पहली कौमों ने देखा ना होगा। सरदार साहब, क्यों जरूरत पेश आई है आपको इस एहतजाज? बस सर, हमें ज़रूरत इसी वजह से पेश आ रही है कि जो बजट आया है, जो प्रपोज बजट था और जो बजट अप्रूव हुआ है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और रियल स्टेट के ऊपर एक खुदकुश हमला किया गया है 7E की सूरत में, टैक्सेस की शरह के इजाफे में की सूरत में, गेन टैक्स के हंगम और बेलगाम घोड़े की सूरत में। तो लिहाजा इसी वजह से ये सारे लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। लोग परेशान हैं, अपने जरिए मुआश की वजह से निकलने पर मजबूर हुए हैं। सर हुकूमत तो चंद दिनों की मेहमान आएगी, तो आप क्या समझे आपकी प्रॉब्लम? देखिए, ये कंटिन्यूटी होगी इसी गवर्नमेंट की, जाहिर है जो आगे से निगरान सेटअप आएगा वो भी इसी की कंटिन्यूएशन ही होगी। हमें इस बात का कभी इम्कान है, तो जाहिर है हमने इन्हीं लोगों से मुतालबा करना है। हम घर जाकर बैठ नहीं सकते, हमारी मजबूरी है कि हम इन लोगों से अपने रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत वक्त से मुतालबा करें। आप लोगों को स्टेज पे लाने वाले वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब हैं, ये भी चाहे गोइयां हो रही हैं, उनको ऑर्डिनरी प्राइम मिनिस्टर लाया जाए, क्या कहिए? देखिए जी, वो प्राइम मिनिस्टर आए केयर टेकर, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया होगा, उस पर भी हमें कोई उसके ऊपर दो राय नहीं है। मुल्क को डिफॉल्ट से भी सर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मैशियत को तबाही जी, वो ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन जब तक आप स्टेक होल्डर के साथ बैठ के, मुशावरत के साथ, कंसल्टेंसी के साथ आप ये काम नहीं करेंगे, हम इस पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ बैठ के मुशावरत के बगैर, विदाउट कंसल्टेशन आप इस तरह के टैक्सेस इम्पोज करेंगे, तो हम ये कभी भी नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह। साहब, आज इस नौबत पे क्यों आए हैं आप? सारे मुल्क को पता है कि रियल स्टेट एक इंडस्ट्री चल रही थी पूरे पाकिस्तान की, और इस हुकूमत ने आकर इसके ऊपर वो टैक्स लगा दिए हैं कि जो ज़रूरी नहीं थे। टैक्सेस होते हैं कि रेवेन्यू इकट्ठा हो, हम उसके साथ हैं, लेकिन रियल एस्टेट पे टैक्स लगाए हैं ये बेजा लगा दिए गए हैं। टैक्सेस ज़्यादा लगाने से रेवेन्यू ज़्यादा नहीं आता, हम ये बताना चाहते हैं। ये इंडस्ट्री को चलना चाहिए, ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। आप देखें, दुबई देखें, मलेशिया देखें, और कितने मुल्कों ने रियल एस्टेट को फ़रोग दिया और वो मुल्क तरक्की कर गए। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है किसी मुल्क को आगे ले जाने के लिए, लेकिन जो जालिमाना टैक्सेस लगाए गए हैं कहाँ हैं? ये आपका डीम टैक्स, ये क्या चीज़ है? ये क्या तस्वुराती टैक्सेस हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम टैक्स पेयर हैं, हम कहते हैं टैक्स पेयर नहीं करता उसे टैक्स उसमें नेट में लाएं, ज़रूर लाएं, हम साथ हैं, लेकिन जो दे रहे हैं
टैक्स कम होने चाहिए, रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। इसके लिए हमारे पास बड़ी प्लानिंग है, हमारे स्टेक होल्डर को साथ लिया गया था, फिर वो वादे पूरे नहीं किए गए, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी दोबारा हमें ऑन बोर्ड लिया जाए और रियल्टर्स को, बिल्डर्स को, डेवलपर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो लाइट इंडस्ट्रीज हैं हमारी 60-70 सबको साथ लिया जाए, फिर टैक्सेस को रिवाइव किया जाए, इस इंडस्ट्री को चलने दें। जो ये अभी करने जा रहे हैं, ये इंडस्ट्री को बंद करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं इंडस्ट्री प्रमोट हो, न सिर्फ हम बल्कि हमारा मुल्क ये तरक्की करेगा, रेवेन्यू ज्यादा आएगा। हमें यकीन है इंशाअल्लाह हुकूमत जो है इस बात को समझेगी, हमारे स्टेक होल्डर को साथ लेगी और इंशाअल्लाह हम फैसले करेंगे और करवाएंगे और हमारी ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है पूरी कम्युनिटी को साथ लेके चलेंगे तो ये फरोग करेगी और मुल्क हमारा खुशहाल होगा इंशाअल्लाह। आपको ऐसा एहतजाज करने सबसे पहले तो मैं आप चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें अपनी जो है ना आवाज़ आगे पहुंचाने का मौका दिया है। पहली बात तो ये कि ये एक जालिमाना टैक्स है जो जबरन जो है ना मुसल्लत किया गया है और इसके पीछे जो सदे बाब है वो ये कि वो ये चाहते हैं कि इस सेक्टर को ख़त्म किया जाए, जैसे शहबाज शरीफ का बयान है। तो ये एक नामुनासिब फेल है जिसकी पादाश में जो है ना आज ये सारे रियल्टर जमा हुए हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। सर मुझे ये बताएं, हुकूमत तो चंद दिनों की मेहमान है, क्यों आप समझते हैं कि ये आपके प्रॉब्लम को हल कर पाए? असल में हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, मगर एक ये पॉलिसी बनाकर छोड़ जाएंगे। जो निगरान हुकूमत है उसके इख्तियारात नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उससे पहले जो है ना ये जो बोझ इन्होंने रियल्टर या प्रॉपर्टी के सेक्टर पे डाला है इसको खत्म किया जाए। आप कह रहे हैं ये पॉलिसी बना के छोड़ जाएगी। इसहाक डार साहब वजीर खजाना, उन्होंने 14 महीने में माशियत का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी ये भी हो रहा है कि ऑर्डिनरी प्राइम मिनिस्टर उनको लाया जाए, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं ऐसा? नहीं, बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं। अगर उम्मीद होती तो हम ये एहतजाज ही ना करते। हमारा एहतजाज इस बात की दलील है कि हमें उनसे 1% भी उम्मीद नहीं है। आज जो हमारे जो रियल्टर्स हैं, जो हमारे बड़े हैं इस सेक्टर के, जैसे सरदार ताज साहब हैं, तो इनका इकट्ठा होना और उनको बार बार मुज़ाकरात की दावत देना इस बात की कड़ी है कि कम से कम अपने होश के नाखून ले। उन्होंने कोई सेक्टर बाकी छोड़ा नहीं है। टेक्सटाइल का सेक्टर बर्बाद कर दिया उन्होंने। इसके अलावा जो है ना जो मिले हैं उनका बेड़ा गर्क हो गया। हमारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट आपको पता है कि वो भी उन्होंने जो है ना लीज पे दे दिया है। कराची एयरपोर्ट का मैं सुन रहा हूँ वो भी उन्होंने जो है ना दे। तो ये सेक्टर बचा है। अब यहाँ से आप देखें ना कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। मैंने पिछले भी एक दूसरे चैनल से बात की थी, मैंने अर्ज किया था कि एक प्लॉट से 1.5 लाख रुपए हम FBR को देते हैं, सिर्फ एक छोटा प्लॉट 8 मरले का, एक सिंगल प्लॉट। अब हमारा जो है ना सेक्टर कमर्शियल रेजिडेंशियल कितने प्लॉट जो है ना ट्रांसफर हो रहे हैं। FBR जितना बड़ा जो है ना टैक्स यहाँ से जनरेट करता है किसी इदारे से नहीं करता। तो यहाँ हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बैठकर बात करें, हम उनको पॉलिसी हम देंगे। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने एक बंदा मुतय्यन किया है वो आके हम पर मुसल्लत हो जाए। इसके साथ हजारों लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग इसके साथ वाबस्ता है ना। सिर्फ ये नहीं है, ईट है, सरिया है, टाइल से लेके जो बहुत चीजें है इसके साथ। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इसके ऊपर है, बहुत आमदनी है गवर्नमेंट के लिए। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, आपका भी शुक्रिया जी। आप मुझे कॉन्टेक्ट में जी। नाजरीन, जैसा कि आपने रियल्टर फेडरेशन के तमाम अहदेदारान की बात सुनी, रियल एस्टेट के जो एजेंट हैं उनकी बात सुनी, इन सब का यही कहना है कि हुकूमत ने हमें इस नेज पे ले आई है कि आज ये एहतजाज करने पे हम मजबूर हो चुके हैं हुकूमत की इंतहाई नाकस पॉलिसियों की वजह से, और ख़ास तौर पर रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो इंतहाई ज़वाल का शिकार हो चुका है। मौजूदा जो हमारे वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार साहब, उनकी पॉलिसियों की वजह से आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं। जहाँ तक ये चाहे गोइयाँ हो रही हैं कि इसहाक डार को ऑर्डिनरी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो इन लोगों की आपने बात सुनी, इनका यही कहना है कि अगर इसहाक डार साहब दोबारा आ गए तो इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज़ है।